बेटा मैं आज आप लोगों के साथ पेपर 2 एएस लेवल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, which is 2020 variance 2, right? It's a very important specimen paper. The properties of elements in the compound show similarities, differences, and trends depending on the position of the element in the periodic table. The positions of some elements are shown. Using figure 1.1, identify the element that forms a soluble hydroxide and an insoluble sulfate. And obviously, barium would be the right answer because barium sulfate is insoluble while barium hydroxide is soluble. Using figure 1.1, identify the most volatile element in a group. Most volatile वो होगा जिसमें सबसे weak forces होंगी that contain elements in all three states of matter at room temperature and pressure. Guys, metal, ये भी metal, ये भी metal. तो ये सारे के सारे solids हैं, ये भी solid है, ये volatile होगा सबसे ज्यादा, ठीक है? तो फ्लोरीन आ जाएगा. Using figure 1.1, identify the element that forms the largest cation. आप सब जानते हैं कि down the group, size of the cation increases. So right answer cesium भी हो सकता है, right answer barium भी हो सकता है. But across the period, size decrease भी होता है, you know, which is why I will take cesium because radius में सबसे बड़ा radius इसी का हो. Next question. Figure 1.2 shows the relative first ionization energies of 6 elements in the periodic table. The letters are not the symbols of the elements. Define first ionization energy. The first ionization energy the amount of energy required to remove one mole of an electron from the neutral gaseous atom to give monopositive ion is called first ionization energy. Suggest why the first ionization energy of B is much less than that of A in figure 1.2. Guys, highest ionization energy नोबेल गैस की होती है, तो बेसिकली ये नोबेल गैस हो गया, ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट, 3, 4, 5. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. तो अगर ये नोबेल गैस है तो ऑब्वियसली ये जो बी है ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप सी जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है. तो वो पूछ रहे हैं ionization energy of B is much less than that of A in figure 1.2. तो जाहिर सी बात है इसका रेडियस ज्यादा होगा, इसमें शील्डिंग ज्यादा होगी, इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इसमें न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन वीक हो जाएगी. सो अब लिखिए element B has a larger atomic size so it has a weak nucleus to valence electron attraction
Because shielding effect increases. Because of the increase in the number of shells. On figure 1.3, sketch a graph to show the trend in the atomic radius of successive elements in period 3. So basically, trend बताना है मैंने, तो across the period, atomic radius always decreases. सही है? हम इसमें आर्गॉन का भी रख सकते हैं, बट क्योंकि एटॉमिक रेडियस का है एग्जामिनर ने, इसलिए हम आर्गॉन ले नहीं रहे, ठीक है, बिकॉज आर्गॉन हैज अ वैन वॉल रेडियस. सो अब अक्रॉस द पीरियड जो है वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, उसकी बहुत ही ऑब्वियस रीजन है. Number of shells remains same. Shielding effect remains same. Nuclear charge increases. So nucleus to electron attraction if nucleus to electron attraction increases, atomic size obviously decrease होगा. Which is why atomic size of the element decreases. Next question, carbon and silicon are element in group 14. Describe in simple terms, structure of solid C60. C60 is basically an allotrope of carbon. Its name is Buckminster fullerene. So basically, it must be a simple covalent molecule. So it has molecular structure. C60 sublimes, turns directly from solid to gas at approximately 800 Kelvin. Diamond also sublimes, but only above 3800 Kelvin. Explain why C60 and diamond sublimes at such different temperatures. तो आप बताएंगे कि C60 जो है वो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें वीक वैन वॉल फोर्सेस होंगी, उनको ओवरकम करने के लिए वी नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हिच इज व्हाई इट विल सबलाइम एट 800 केल्विन. तो हम यहाँ लिख देते हैं C60 exhibit covalent bonding and has a molecular structure
due to weak van der Waals forces. Less energy is needed. Hence, it will sublime at 800 Kelvin. आप जानते हैं कि डायमंड giant structure होता है, strong covalent bonding होती है, lots of covalent bonds होते हैं, उनको break करने के लिए we need more amount of energy, which is why it will sublime at very much high temperature, that is 3800 Kelvin. Diamond exhibit covalent bonding and has a giant structure with lots of covalent bond. To overcome such strong bonding, we need more amount of energy. Thus, it will sublime at very high temperature of 3800 Kelvin. C60 forms hydrocarbon with similar chemical properties to those of alkenes. One such hydrocarbon is C60H18. Defined hydrocarbons. Compound consists of carbon and hydrogen only. ठीक है. C60H18 is an alkene. State a test to indicate the presence of double bond between carbon atom in aqueous test. Use aqueous bromine. So is asking the test actually. State the test. State the observation seen when the test is carried out. तो बताइए red, brown to colorless. .144 gram of C60 is placed in 100 cm cube container of hydrogen gas at a temperature of 20 degrees Celsius at a pressure of this. The container is heated to make C60 and hydrogen gas react. The reaction occurs as shown in the equation. After the reaction, the container is allowed to cool to 20 degrees Celsius. The pressure decreases to 2.2 into 10 to the power 10 to the power 4 Pascal. All the C60 has reacted. Name the type of reaction that occurs, beta. जब भी addition of hydrogen होती है, reduction कहते हैं, hydrogenation कहते हैं. तो हम यहाँ हाइड्रोजनेशन कह सकते हैं, हम यहाँ रिडक्शन कह सकते हैं.
calculate the amount in moles of C60 that reacts. So mass of C60 is given. सबसे पहले MR of C60 कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 60 into 12. तो यहाँ से MR बेटा आपके पास कितना आ रहा है 720. अब अगर मैं यहाँ से मोल्स ऑफ C60 कैलकुलेट करूं, ये हो जाएगा आपके पास 0.144 डिवाइडेड बाय 720. तो आपके पास मोल्स आ रहे हैं बेटा 2 into 10 to the power -4 moles. तो हम यहाँ लिख देंगे 2 into 10 to the power -4 moles. Now the next part is calculate the amount in moles of hydrogen gas that reacted with the C60. Show your working. Okay. So guys, मुझे PV equals to nRT apply करना है, but before that मैं फाइनल प्रेशर डिटरमिन कर लेता हूँ. और फाइनल प्रेशर डिटरमिन करने के लिए जाहिर सी बात है, जो मेरे पास प्रेशर था 2.21 into 10 to the power 4 पास्कल, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1 times 10 to the power 5 पास्कल से. मैंने ये इनिशियल है मेरे पास, ये फाइनल है मेरे पास, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा. तो ये हो जाएगा 1.0 into 10 to the power 5 minus 2.21 into 10 to the power 4. तो यहां से मेरे पास फाइनल प्रेशर कितना होगा, जस्ट होल्ड इन अ सेकंड. ये हो जाएगा 1 exponent 5 minus 2.21 exponent 4. सो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 77900 पास्कल. ठीक है, जो उठाकर मैंने यहाँ रखा. वॉल्यूम मेरे पास गिवन था आई थिंक 100 cm क्यूब. उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 to the power -6 करेंगे. मोल्स मुझे मालूम करने हैं क्योंकि उन्होंने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कहा है मुझे. सो मोल्स एज इट इज मालूम कर लेंगे. आर की वैल्यू 8.31 है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 293. तो यहाँ से n की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी 3.10 into 10 to the power -3 moles. ठीक है, next part, use your answer from C2 and C3 to deduce the molecular formula of hydrocarbon C60H2X. ठीक है, C2 and C3 to deduce the molecular formula. तो C2 क्या है आपके पास, C2 है आपके पास C60 का मोल्स, और C3 आपके पास क्या है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो 2 into 10 to the power -4 and 3.1 into 10 to the power -3. ओके, सो बेटा आपके पास C6 और आपके पास हाइड्रोजन गैस है. इसके मोल्स हैं 2 into 10 to the power -4 और इसके मोल्स हैं 3.19 into 10 to the power -3. एंड ऑब्वियसली बेटा मैंने इस वैल्यू को डिवाइड करना है क्योंकि ये लीस्ट वैल्यू है. तो ये आपके पास आ जाएगा 1 और ये आपके पास आ जाएगा 16. सो यहां से H2 आपके पास कितना आया है 16. तो बेसिकली X की वैल्यू कितनी आ गई है 16. तो अगर C60 है 2 times 16 होगा तो ये हो जाएगा C60H32.
Silicon shows the same type of bonding and structure as diamond. Silicon reacts with magnesium to form magnesium silicate. Solid Mg2Si reacts with dilute, ये बेटा रिएक्शन कर रहा है dilute hydrochloric acid से to form gaseous silane and a solution of magnesium chloride. Construct an equation including state symbols. ठीक है, तो ये हो जाएगा Mg2Si और ये सॉलिड होगा क्योंकि एग्जाम ने यहाँ कहा हुआ है सॉलिड. रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मीडियम एक्वस होगा, रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, ऑब्वियसली मीडियम एक्वस, और SiH4 बनेगा विच इज गैस, और गैस होता है, ये बात एग्जामिनर ने हमें बताई है. Predict the shape of SiH4. ऑब्वियसली बेटा सिलिकॉन के अराउंड 4 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी with an angle of 109.5 degree. Next question is जनाब, calcium and its compounds have a large variety of applications. Calcium reacts rapidly with most acids. When calcium metal is placed in dilute sulfuric acid, it reacts vigorously at first. After a short time, layer of calcium sulfate forms on the calcium metal and the reaction stops. This is also called blocking reaction according to O-level chemistry. Some calcium metal and dilute sulfuric acid remains unreacted. Suggest an explanation for these observations. So guys, when you add calcium into dilute sulfuric acid, obviously white precipitates form होंगे calcium sulfate के. Bubbles of gas is given off because whenever acid reacts with metal, hydrogen gas release होती है. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? Because calcium sulfate is insoluble in water. So it will block the reaction. ठीक है, calcium ethane diode is formed when calcium reacts with ethane dioic acid. That's an important statement. Calcium ethane diode contain one cation and one anion. State the full electronic configuration of the cation. Calcium, the calcium ion. Calcium has an atomic number of 20. If it is calcium ion, इसका मतलब उसमें 2 plus charge होगा, meaning 18 electrons आ जाएंगे, तो 18 electrons की configuration हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and then 3p6. Reduce the charge on the cation. Obviously 2 plus charge होगा. Draw the fully displayed formula of the ethane dioic acid. This is ethane dioic acid. इसको displayed form लिखना है, यानी सारे के सारे bonds और atoms attach करना है. अब आपको नजर आ रहा है बहुत clearly, ये COH है और ये भी COH है, तो मैंने लिखना है इस तरह से COOH, फिर होगा COOH. ठीक है, calcium chlorate 1 is used as an alternative to sodium chlorate 1 in some household products.
The chlorate 1 ion is formed when cold aqueous sodium hydroxide reacts with chlorine. Write an ionic equation for this reaction. State symbols are not required. ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है. सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोरेट बनता है और वाटर बनता है. अब आप जानते हैं कि सोडियम जो है वो स्पेक्ट्रेटराइन है, तो यहां से फाइनल इक्वेशन क्या होगी? हाइड्रोक्साइड आइंस प्लस Cl2 Cl माइनस प्लस ClO minus plus H2O. We did this in equation in group 17 chapter, if you remember. The chlorate 1 ion is unstable and decomposes when heated as shown. This reaction can be described as disproportionation reaction. What is mean by the term disproportionation reaction? आप नोट करें, क्लोरीन जो है वो simultaneously reduce भी हो रहा है, क्लोरीन simultaneously oxidize भी हो रहा है. When an element is reduced and oxidized simultaneously, then it is called disproportionation reaction. ठीक है. Deduce the oxidation number of chlorine in each species for the equation in C2. Okay, इस जगह पर क्लोरीन +1 है, इसमें -1 है और इसमें +5 है. यहाँ -1 है और यहाँ +5 है. और ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने कैलकुलेट करके दी हैं आपको रिडॉक्स के चैप्टर में. कैल्शियम कार्बोनेट reacts with 2-hydroxypropanoic acid to form product Y. ठीक है, ये 2-hydroxypropanoic acid है, तो कैल्शियम से रिएक्शन करेगा, ये प्रोडक्ट Y बनाएगा. Identify the two other major products of the reaction of 2-hydropropanoic acid with calcium carbonate. So whenever carbonates react with acid, always carbon dioxide and water are formed, क्योंकि salt तो given है. Okay, two possible methods of making 2-hydroxypropanoic acid are shown in figure 3.2. State suitable reagents and conditions for reaction 1 and 3. Suitable reagents and conditions for reaction 1 and 3. आप नोट करें, ये एल्डिहाइड है और ये कन्वर्ट हो गया है साइनोहाइड्रिन में. तो एल्डिहाइड में साइनो बनेगा जब आप HCl से लेंस ऑफ कैटलिस्ट अंडर हीट. उसके बाद वो रिएक्शन 3 कह रहे हैं. अब आप नोट करें, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इट विल टर्न टू कीटोन, ऑक्सीडेशन हो गई. सिमिलरली ये प्राइमरी अल्कोहल है, इट विल टर्न टू कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन ऑक्सीडेशन हो गई. तो ऑक्सीडेशन के लिए यू नीड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हो जाएगा K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. कंडीशन जो है ना, मैं वो रिफ्लक्स यूज कर लूंगा बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है. फिर वो कह रहे हैं डिड्यूस द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन 2. लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन 2. आप नोट करें, ये CN कन्वर्ट हो गया COH में, बाकी पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, राइट, व्हिच मींस इट इज एसिड हाइड्रोलिसिस. The reagent for reaction 4 is NaBH4. Identify the role of NaBH4 in this reaction. Obviously, reducing agent is the reduction.
2-hydroxypropanic acid has a chiral center. State what is meant by the term chiral center. तो chiral center की जो term है वो तो बहुत simple सी है. Then 4 different groups. Are attached to the same carbon atom. Next, a reaction scheme involving cyclohexane is shown in figure 4.1. Reaction involves a free radical substitution mechanism. State the essential conditions required for reaction 1. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ऑब्वियसली यूवी लाइट, क्योंकि क्लोरीन इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में. क्लोरीन की जगह कोई और हैलोजन होता तो सनलाइट ले लेते. आप नोट करें क्लोरीन से क्लोरीन रेडिकल बन रहा है, इसका मतलब इनिशिएशन होगा. फिर आप नोट करें क्लोरीन रेडिकल HCl बना लेगा. ये भी प्रोपेगेशन का स्टेप होता है जिसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल रिएक्शन करके क्लोरीन रेडिकल बना रहा होता है. टर्मिनेशन में क्या होगा कि एक आपके पास ये रेडिकल होगा, दूसरा क्लोरीन रेडिकल होगा, और ये दोनों मिलकर इस प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेंगे. ठीक है बेटे. Deduce the type of reaction that occurs in reaction 2. reaction 2 तो बेटा आपके पास प्रोपेगेशन है. ओ रिएक्शन 2. ओके, आप नोट करें अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बन रहा है, एलिमिनेशन हो रही है. ठीक है. उसके बाद है hexene is an isomer of cyclohexene. Hexene can be converted into propanic acid. तो बेटा hexene को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, और वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? ओनली प्रोपेनिक एसिड. यानी इससे मुझे क्या मिल रहा होगा? CH3 CH2 और डबल बॉन्ड के साथ जो CH है वो कन्वर्ट हो गया COH में, प्लस CH3 CH2 और डबल बॉन्ड के साथ जो CH है वो कन्वर्ट हो गया COH में. डबल बॉन्ड के साथ CH COH में उस वक्त कन्वर्ट होता है जब आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 यूज करें. अंडर एसिडिक मीडियम. ठीक है. Now the next part, the next question. It is extremely important, very important question. Mass spectrometer से है ना, very important question. You will get the idea that mass spectrometer का question कैसे आने वाला है. Compound X contain atoms of carbon, hydrogen and oxygen only. So मुझे सिर्फ ये बता दिया गया है कि मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. The mass spectrum of X is recorded. Information about the two peaks with M by E greater than 100 is shown in figure 5.1. Y-axis पे relative abundance है, X-axis के ऊपर mass to charge ratio है, right? आप नोट करें ये 102 मास है और उस पर 100% abundance है. ये 103 मास है और उस
उसकी अबंडेंस 6.5% है। अब आप जानते हैं कि अगर ये मॉलिक्यूलर मास है आपके पास और इसमें 1 यूनिट की एडिशन कर रहा हूं तो इसका मतलब ये m+1 पीक हो गई। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है मॉलिक्यूलर मास एंड ऑब्वियसली ये क्या होगी आपके पास, मॉलिक्यूलर आयन पीक। और क्योंकि इसमें 1 यूनिट की एडिशन होती हुई नजर आ रही है मुझे, इसका मतलब ये m+1 पीक है। सो ये m+1 पीक की अबंडेंस है, ये मॉलिक्यूलर आयन पीक की अबंडेंस है। ठीक है। A molecule of X contains 6 carbon atom. Demonstrate that this is correct using information from figure 5.1. Show your working. Again, very important, extremely important. ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिटरमिन करने हो तो तुम फॉर्मूला यूज करोगे n इक्वल्स टू 100/1.1। ये किस चीज का रेशो है, ये फिक्स रेशो है। ये रेशो कह रहा है कि अगर मैं 100 कार्बन एटम्स दूं तो उसमें से सिर्फ एक कार्बन एटम कार्बन 13 की होगी, 99 कार्बन एटम कार्बन 12 की होगी। ये रेशो फिक्स रहेगा फॉर ऑल द क्वेश्चंस। ऑफ m+1 पीक, ये क्या चीज है आपके पास, abundance of molecular ठीक है कि हम जो फिक्स है। ठीक है, और ये फॉर्मूला मैंने लिखा है डायरेक्ट, बट इसकी डेरिवेशन है A2 केमिस्ट्री में भी नहीं है तो ऑब्वियसली A1 केमिस्ट्री में भी नहीं होगी, बट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अबंडेंस ऑफ m+1 पीक आपको ग्राफ से पता चल रही है, ये लिखी हुई है 6.5। अबंडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक 100 है तो यहाँ से n की वैल्यू 6 है और वो यही तो कह रहा है n की वैल्यू 6 है। आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा इंफॉर्मेशन फ्रॉम 5 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस स्पेक्ट्रम को डिड्यूस करके यूज करके मैं नहीं डिटरमिन कर सकता। मुझे मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके मुझे मॉलिक्यूलर मास पता है, राइट। और मुझे ये पता है कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और मुझे ये भी पता चल गया कि अब कार्बन 6 है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं बी पार्ट को फॉर द टाइम बिंग स्किप कर दूंगा, मैं आगे बात करूंगा। फिर वो कह रहे हैं सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फ्रेगमेंट X एट m/z31। अब देखिए मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन करवाई थी, याद है? मैंने जब फ्रेगमेंटेशन आपको करवाई थी, पता नहीं आपको याद है या नहीं। ये देख रहे हैं, ये फॉर्मूला है जो हमने यूज किया है। ये देखिए, ये मैंने इथेनॉल की फ्रेगमेंटेशन करवाई थी आपको, और उस फ्रेगमेंटेशन में मैंने एक मास आपको दिया था 31। तो एग्जामिनर भी यही कह रहे हैं कि मास टू चार्ज रेशियो 31 का जो फ्रेगमेंट है ना X, उसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो देखिए अब आपको ये चीज याद होनी चाहिए, फ्रेगमेंट 31 का फॉर्मूला ये है CH2OH+। इसका मतलब ये फ्रेगमेंट्स याद होने चाहिए आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
CH2OH प्लस। ठीक ना, मुझे एक चीज कंफर्म हो गई कि फंक्शनल ग्रुप OH है मेरे पास, है ना। मुझे एक चीज कंफर्म हो गई कि फंक्शनल ग्रुप मेरे पास कौन सा है, OH। ना आई कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन नाउ। मैं अब इस फॉर्मूले को डिटरमिन करने के काबिल बन गया क्योंकि मुझे फंक्शनल ग्रुप पता चल गया। कैसे करूंगा डिटरमिन, जरा देखिए। मेरे पास मॉलिक्यूलर मास है 102, उसमें से कार्बन जो है ना वो 6 है, तो मैं 6 कार्बन एटम का मास सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आंसर आएगा 30। जाहिर सी बात है मैं उसमें से 17 भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ क्योंकि फंक्शनल ग्रुप OH है, तो मेरे पास कितना आएगा 13। ये 13 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, तो कार्बन कितने हो गए मेरे पास यहाँ से 6, ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास यहाँ से 1, और टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 13, ये है 1 ये है 4 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, C6H14O, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। ठीक है, C6H14O, ये फॉर्मूला आ गया। दैट्स कॉल्ड एनालिटिकल स्किल्स। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ये एट टाइम्स यूज होता है, सबको यूज करना होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज फिगर 5.2 shows the infrared spectrum of X। ठीक है, ये X का स्पेक्ट्रम आ गया है। आप जानते हैं कि ये जो पीक है ये CH है और ये 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर है, वेयरएज ये पीक जो है वो OH की है और ये 3350 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर है, राइट। ओके, ये देखिए, आप मैं आपसे कह रहा था कि जब भी कोई क्वेश्चन होगा, अगर उसके लिए कोई डेटा चाहिए होगा तो एग्जामिनर क्वेश्चन में डेटा अटैच करके देगा। आप नोट करें, इस स्पेक्ट्रम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने IR का डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो डेटा हमेशा मिलेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट डेटा बुकलेट नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल इज देयर, राइट, पीरियोडिक टेबल मिलेगा। Identify the functional group present in X using your answer in B and information from figure 5.2 and table 5.1. Give a reason for your answer. So बेटा एक आपके पास है OH functional group और इसकी पीक जो है वो 3350 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर है। एक आपके पास है CH और इसकी पीक है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑलराइट, और तो कोई भी पीक हमने डिटरमिन नहीं की इसके अंदर। We are done with the paper। आप नोट कर लीजिए कि आपको यहाँ कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यूज गिवन है, तो जब पेपर मिलेगा तो कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यूज गिवन होंगी। आप नोट करें, आपको पीरियोडिक टेबल भी अटैच करके दे रहा है एग्जाम। सही है।